میں نے اسی شام زندگی میں پہلی بار اپنی امی کی آواز سنی۔ انہوں نے فون پر کہا، ہیلو بیٹے، کیسے ہو؟ السلام علیکم امی جان۔ وہ بولی، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر دے، دوائیں باقاعدہ کھا رہے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، آپ لمبی عمر کی دعائیں دے رہی ہیں، لیکن یہ مجھ پر ظلم ہے کہ آپ میرے پاس نہیں آ رہی۔ وہ بولی، میں خط میں لکھ چکی ہوں، میرے دامن پر ایک بدنما داغ لگایا گیا ہے، جس دن تم اس داغ کو مٹاؤ گے میں تمہیں گلے لگانے آ جاؤں گی۔ میں نے پوچھا، وہ کیسا داغ ہے؟ کس کمبخت نے وہ داغ لگایا ہے؟ مجھے اس کا نام اور پتہ بتائیں، میں اس کاٹیج سے نکلتے ہی اسے جہنم میں پہنچا دوں گا۔ وہ بولی، جب تک زخم نہیں بھرے گا تم کاٹیج سے نہیں نکلو گے۔ میں تمہاری صحت اور جسمانی اور دماغی توانائی سے مطمئن ہو جاؤں گی تو ایک نہیں کئی دشمنوں کے نام اور پتے بتاؤں گی۔ میں نے کہا، خدا گواہ ہے، میں نے کبھی ایک لفظ بھی آپ کے خلاف سننا گوارا نہیں کیا۔ میں آپ کے خلاف بولنے والوں کا جینا حرام کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ کسی نے آپ کے دامن پر داغ لگایا ہے۔ وہ بولی، دماغی صحت مندی کی پہچان یہ ہے کہ آدمی اپنی توہین اور غصہ برداشت کرتا رہے، پھر بڑی ذہانت اور حکمت عملی سے اپنی توہین کا انتقام لیتا ہے۔ ایک سعادت مند بیٹے کی طرح میری ہدایت پر عمل کرو اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو۔ میں نے کہا، میں آپ کی اس ہدایت پر عمل کروں گا۔ وہ بولی، میں کوئی گمنام لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوں، تم زخم بھرنے کے بعد لاہور آؤ گے تو آسانی سے میری رہائش گاہ کا پتہ معلوم کر سکو گے۔ میں نے کہا، میں ایسا ضرور کروں گا۔ وہ بولی، نہیں بیٹے، تم میری رہائش گاہ اور ہسپتال کا معلوم کر سکتے ہو، لیکن کبھی میرے روبرو نہ آنا۔ پہلے تم ایک غیرت مند بیٹے کی حیثیت سے میری پارسائی ثابت کرو گے، پھر میرے سامنے آؤ گے۔ وعدہ کرو۔ میں نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، دماغ ٹھنڈا رکھوں گا اور دشمنوں کو ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ کے سامنے آؤں گا۔ وہ بولی، شاباش بیٹے، اس کاٹیج میں مطالعہ کرنے کے لیے بہترین کتابیں اور ویڈیو فلمیں ہیں، تمہارا وقت اچھا گزرے گا۔ میں نے پوچھا، امی جان، یہ کس کا کاٹیج ہے؟ وہ بولی، میرا ہے، اب تمہارا بھی ہے۔ میں ہر ہفتے کی شام کاٹیج میں جاتی ہوں، ایک رات اور اتوار کا دن بالکل تنہا گزارتی ہوں۔ اسپتال کی ایمبولینس کا ڈرائیور مجھے یہاں لاتا ہے اور اتوار کی شام کو لے جاتا ہے۔ کل شام کو میں وہاں جا رہی تھی، تبھی تم مجھے نظر آ گئے۔ میں نے پوچھا، آپ مجھ سے دور رہیں، پھر مجھے کیسے پہچان لیا؟ وہ بولی، جب تم بچے تھے، اپنے دادا کے ساتھ رہتے تھے، تب سے تمہیں ہر دوسرے تیسرے دن چھپ کر دیکھتی رہتی ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ تمہارے دادا تمہیں فولاد بنا رہے ہیں اور ایک دن تم روبوٹ بن کر میرے دشمنوں کی گردنیں توڑو گے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم میں آپ کی نیک نامی واپس لاؤں گا، میرا تو جی چاہتا ہے۔ وہ بولی، بس آگے مت بولو، تم پھر برداشت نہیں کر رہے ہو اور جوش میں آ رہے ہو۔ میں نے کہا، سوری امی جان، میں رفتہ رفتہ غصے پر قابو پانا سیکھ جاؤں گا۔ وہ بولی، شاباش، اب آرام کرو، میں کل صبح فون کروں گی۔ امی نے فون بند کر دیا۔ میں نے موبائل فون کو آف کر کے وقت کے مطابق دوائیں کھائیں، پھر بستر سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا فریج کے پاس آیا اور اپنی پسند کے پھل نکال کر کھانے لگا۔ میری امی نے بڑی زود اثر دواؤں کا انتخاب کیا تھا۔ دوسرے دن میں نے کافی توانائی محسوس کی۔ کاٹیج سے باہر جا کر ٹہلنے کو جی چاہا، لیکن امی نے آرام کرنے کو کہا تھا، اس لیے ایک کرائم سٹوری والی فلم منتخب کی اور اسے VCR میں لگا کر ٹی وی آن کر کے ریموٹ کنٹرول لے کر بستر پر نیم دراز ہو گیا اور اب فلم دیکھنے لگا۔ میرے لاشعور میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ میں مجرمانہ چال بازیاں سیکھتا رہوں، اس لیے جرائم سے تعلق رکھنے والی کتابیں پڑھتا تھا اور ویڈیو فلمیں دیکھا کرتا تھا۔ امی نے تیسرے دن ایک ڈاکٹر کو بھیجا، اس نے میرے زخم کی مرہم پٹی کی اور ایک انجیکشن لگایا۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر میری امی کیسی ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا، اگر خیریت پوچھ رہے ہو تو وہ بخیریت ہیں، اگر ان کی صلاحیتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو سبھی ڈاکٹر اور مریض یہی کہیں گے کہ ان پر خدا کی رحمت ہے، وہ جس مریض کو اٹینڈ کرتی ہیں وہ صحت یاب ہو کر دوڑنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ایسی مسیحائی دیتا ہے۔ امی کی تعریفیں سن کر میں فخر محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر کے ذریعے تازہ پھل، میوے، دودھ کے پیکٹس اور کچھ دوائیں بھیجی تھیں۔ وہ ڈاکٹر ایک ایک دن کے وقفے سے آ کر میرا علاج کرنے لگا۔ اسے باتیں کرتے رہنے سے معلوم ہوتا رہتا کہ میری امی کتنی باوقار اور باصلاحیت ڈاکٹر ہیں۔ وہ صاحبان حیثیت سے علاج اور آپریشن کی فیس لیا کرتی تھیں اور غریبوں کا مفت علاج کیا کرتی تھیں۔ یہ تعریفیں سن کر مجھے احساس نہیں ہوا کہ اپنی ماں کے برعکس دولت کمانے کے لیے ہلاکت خیز واکنگ سٹک گن بنا سکتا ہوں اور لاکھوں کروڑوں روپے حاصل کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ مجھ جیسے لوگوں کو شاید اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت سی کچی پکی مثالیں اور دلائل
तफसील याद कर लेते हैं। तकरीबन 12 दिनों में जख्म भर गया। मैं कॉटेज के बाहर जंगल की खुली फजा में दौड़ने, दरख्तों पर चढ़ने, छलांगे लगाने और मेहनत और मुशक्कत वाली वर्जिशें करने लगा। अम्मी ने फोन पर बताया, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी तवानाई बहाल हो गई है। तुमने उसके सामने एक दरख्त की मोटी शाख को अपनी गर्दन पर रख कर दोनों हाथों की मदद से तोड़ा था। मैंने कहा, जी हाँ अम्मी जान, आप मुझे उन दुश्मनों के नाम और पते ठिकाने बताएं। मैं वादा करता हूँ गुस्से और जल्दबाजी से काम नहीं लूंगा। वो बोली, मैं अभी बताऊंगी, पहले तुम बताओ किन लोगों से तुम्हारी दुश्मनी थी। दुश्मन कोई एक नहीं होगा। मैंने अम्मी को पूरी तफसील बताई। उन्होंने तमाम वाकयात सुनने के बाद कहा, अगर तुम गालियां सुनकर मुश्तिल न होते, हालात के मुताबिक बर्दाश्त करते तो फिर बाद में उनसे निमट सकते थे। क्या तुम एतराफ करते हो कि तुम्हारे गुस्से और जोश जुनून ने तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा दिया था? मैंने कहा, मैं मानता हूँ, पहले आपके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं करता था। अब आपके समझाने से अक्ल आ गई है कि तूफान की आमद से कबल समंदर की लहरें पुरसुकून हो जाती हैं। मुझे भी तूफान बनने से पहले पुरसुकून रहना चाहिए। वो बोली, शाबाश, ये हमेशा याद रखो, जितने सुकून और संजीदगी से ठंडे और खामोश रहोगे, उतनी ही जहानत से काम लेने के मंसूबे जहन में आते रहेंगे। मैंने कहा, मैं खामोश, संजीदा और पुरसुकून रहा करूंगा। आप मुझे उन दुश्मनों के नाम और पते बताएं। वो बोली, मैंने अपने दुश्मनों के मामले में 22 बरस से कलेजे पर पत्थर रखा हुआ है। एक आध महीने और सब्र कर लो। पहले तुम्हें अमली तौर पर आजमाऊंगी। ये देखूंगी कि जिन्होंने तुम्हें माँ की गालियां दी और अपनी दानिश में तुम्हें हलाक करके जंगल में फेंक गए, उनसे तुम इस तरह इंतकाम लो कि पुलिस वालों को तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत न मिले। इसका एक ही रास्ता है, ठंडे दिमाग से हिकमत अमली तैयार करते रहो। मैंने कहा, आप मुझे आजमाना चाहती हैं। मैं आजमाइश पर पूरा उतरने के लिए कॉटेज को लॉक करके जा रहा हूँ। वो बोली, अभी रात को न जाओ, कल सुबह अस्पताल का ड्राइवर मेरी कार लाएगा। उसके डैशबोर्ड में तुम्हारे नाम, कार लाइसेंस और एक रिवॉल्वर है। उस रिवॉल्वर का लाइसेंस भी तुम्हारे नाम पर है। मैंने कहा, ताज्जुब है अम्मी जान, आपने तन्हा ये काम कैसे करवा लिया? वो बोली, बेटे, तुम्हारी माँ कोई गुमनाम लेडी डॉक्टर नहीं है। यहाँ से इस्लामाबाद तक बड़े बड़े सरकारी ओहदेदारों को और उनकी फैमिली मेंबर्स को पेचीदा अमराज से निजात दिलाती आई हूँ। सब मेरे एहसानमंद रहते हैं और मेरी कदर करते हैं। मैंने कहा, मुझे फख्र है कि मैं एक अजीम माँ का बेटा हूँ। वो बोली, एक दिन आएगा जब मैं भी तुम्हारी अजमत पर फख्र करूंगी। राब्ता खत्म हो गया। मैं सोचने लगा कि अपने दुश्मनों से किस तरह बारी बारी राब्ता किया जाए। मैं उन 4 क्लेशनकोफ बरदार गुंडों के नाम और पते नहीं जानता था। जो शख्स मुझसे वॉकिंग स्टिक बनवाने आया था, उसने अपना नाम बरकत अली बताया था। हो सकता है ये फर्जी नाम हो। खतरनाक काम करवाने वाले अपनी असलियत छुपाया करते हैं। मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी में उस पुलिस स्टेशन का नंबर तलाश किया जहां मुझे गिरफ्तार करके ले जाया गया था। वहां का नंबर मिल गया। मैंने राब्ता किया। दूसरी तरफ से किसी हवालदार ने कहा, इलाही बख्श बोल रहा हूँ, आप बोले कौन हैं, क्या चाहते हैं? मैंने कहा, मैं इंस्पेक्टर कलीम बुखारी को एक जरूरी पैगाम देना चाहता हूँ, उनसे बात करवाओ, पैगाम बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं इंस्पेक्टर कलीम बुखारी बोल रहा हूँ, तुम कौन हो, क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं उस कम ज़र्फ की आवाज लाखों में पहचान सकता था। उसकी जबान से निकली हुई गालियां उस वक्त भी मुझे बंदूक की गोलियों की तरह छलनी कर रही थीं, लेकिन मैं गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था। ये मेरी अम्मी की दानिशमंदी थी। वो मुझे आजमाइशों से गुजरना सिखा रही थी। मैंने कहा, जनाब आली, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। जब आप फरमान को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो उस भीड़ में मैं भी था। मैंने उस वक्त बताया नहीं कि जो चीज उसकी दुकान में तलाश की जा रही है वो मेरे पास है। उसने जल्दी से पूछा, क्या वो गन तुम्हारे पास है? तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई? मैंने कहा, जनाब आली, फरमान ने उस गन को अमानत के तौर पर रखने को दिया था। अब इतने दिन गुजर गए हैं, वो लौट कर नहीं आया है। मैं सोचता हूँ शायद किसी ने उसे कत्ल कर दिया है। अगर ऐसा है तो उस गन की वजह से मुझ पर मुसीबत आ सकती है। इंस्पेक्टर बोला, तुम ठीक सोच रहे हो, तुम पर मुसीबत आ सकती है, उस गन को थाने ले आओ। मैंने कहा, जनाब आली, अगर फरमान मर चुका है तो मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसने कहा था कि अगर वो 1 हफ्ते तक वापस ना आए तो मैं उस गन को उसी गाहक के हवाले कर दूं जिसने अपना नाम बरकत अली बताया था। इंस्पेक्टर बोला, उसका नाम बरकत अली नहीं, इनाम रब्बानी है। मैं उसे थाने बुला रहा हूँ, तुम भी गन लेकर यहाँ आ जाओ। मैंने कहा, नहीं सर जी, पहले मैं उससे तन्हाई में मिलूंगा। फरमान ने कहा था, जिसकी अमानत है उसको दी जाए। मैं नहीं जानता कि उसका नाम इनाम रब्बानी है, मगर मैं उसे चेहरे से पहचानता हूँ। फरमान ने कहा था कि इनाम रब्बानी राजदारी से गन हासिल करेगा और इस गन को पुलिस वालों के हाथ नहीं लगने देगा।
इंस्पेक्टर बोला, और ये बात तुम पुलिस वाले को बता रहे हो और हमसे उस गन को छुपाना भी चाहते हो? मैंने कहा, मैं मजबूर हूँ। इनाम रब्बानी का पता ठिकाना नहीं जानता, उसका फोन नंबर भी मैं नहीं जानता, सिर्फ आप ही के जरिए उससे राब्ता हो सकता है। इंस्पेक्टर बोला, तो फिर ठीक है, मैं अभी रब्बानी से बात करता हूँ, वो तुमसे राब्ता करेगा। अपना फोन नंबर बताओ। मैंने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में फोन नहीं है, मैं अभी पीसीओ से बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर बोला, समझ गया, तुम बहुत चालाक और मोहतात हो, कोई बात नहीं, आधे घंटे के बाद फोन करो, मैं पहले रब्बानी से बात करूंगा, फिर उसका फोन नंबर बताऊंगा। मैंने फोन बंद कर दिया। आधे घंटे के बाद फिर इंस्पेक्टर से राब्ता किया। उसने कहा, मैंने रब्बानी से बात कर ली है, उसने कहा है कि मैं तुम्हें उसका फोन नंबर बता दूं, तुम नंबर नोट करो। मैंने उसके बताए हुए नंबर को नोट किया, फिर राब्ता किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, कौन है? मैं इनाम रब्बानी बोल रहा हूँ, क्या तुम वही हो जिसने अभी इंस्पेक्टर कलीम बुखारी से बात की है? मैंने कहा, हाँ मैं तो वही हूँ, लेकिन तुम इनाम रब्बानी नहीं हो, मुझे धोखा दे रहे हो। वो बोला, ये क्या बकवास है, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं रब्बानी हूँ तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा, इसलिए कि मैं रब्बानी को उसके चेहरे और आवाज से अच्छी तरह पहचानता हूँ। दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। इंस्पेक्टर कलीम बुखारी की चाल समझ में आ गई। वो इनाम रब्बानी की लाइल्मी में उस गैर मामूली वॉकिंग स्टिक गन को हासिल करना चाहता था। मैंने 15 मिनट के बाद फोन किया, जनाब इंस्पेक्टर साहब, इस गन के सिलसिले में रब्बानी से आपका लेन देन हो सकता है, रिश्वत की जो रकम तय हुई है वो आप रब्बानी से लें, लेकिन किसी जाली रब्बानी के जरिए मुझे धोखा न दें। इंस्पेक्टर बोला, तुम जरूरत से ज्यादा चालाक हो, मैं रब्बानी से अपना हिस्सा वसूल कर लूंगा, उसका नंबर नोट करो। इस बार इंस्पेक्टर ने सही नंबर बताया था। राब्ता होने पर दूसरी तरफ से रब्बानी की आवाज सुनाई दी। मैंने उसे बताया कि फरमान 10-12 दिन से लापता है, उसकी अमानत मेरे पास है, मगर वो एक ऐसी गन है जिसे मैंने इंस्पेक्टर कलीम बुखारी को भी देने से इनकार कर दिया है। रब्बानी को ये भी बताया कि इंस्पेक्टर किस तरह फ्रॉड करके वो गन मुझसे हासिल करना चाहता था। रब्बानी ने कहा, तुम वाकई अमीन हो, मेरी अमानत मुझे देना चाहते हो, ये बताओ मेरी अमानत कब दोगे और कहाँ दोगे? मैंने कहा, जनाब बड़ी राजदारी की चीज है, आप कोई महफूज जगह बताएं, मैं उसे वहाँ ले आऊंगा। वो बोला, ये तो तुम मेरे तहफ्फुज की बात कर रहे हो, अभी मैं सोच रहा था कि तुम अजनबी हो, मैं किस तरह तुम पर भरोसा करूंगा, अब तो भरोसा ही भरोसा है, तुम मेरी कोठी में आ जाओ। उसने शादमान टाउन का पता बताया। मैंने कहा, जनाब एक अर्ज है, मैं अमानत वापस करने का सिला नहीं चाहता, मगर बहुत गरीब हूँ, अपनी बीमार बीवी के लिए 500 रुपए की जरूरत है, अगर आप 500 रुपए। उसने मेरी बात पूरी होने से पहले एक जोरदार कहकहा लगाया, 500? तुम मेरा इतना बड़ा काम कर रहे हो और 500 मांग रहे हो? ये 500 क्या होते हैं? मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा, बोलो कब आ रहे हो? मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा, रात का वक्त है, इतना बड़ा थैला उठाकर लाऊंगा तो रास्ते में पुलिस वाले चेक करेंगे, मैं कल दिन के 11 बजे अपनी बीवी को अस्पताल में दाखिल करके 1 बजे तक आपके पास आऊंगा। तमाम बातें तय हो गयी। फोन बंद हो गया। मैंने मुतमईन होकर सोचा, अम्मी जान दुरुस्त कहती हैं। मैंने दिमाग को ठंडा रखा और निहायत सुकून और एतमाद से बातें करता रहा और ऐसी बातें बनाता रहा कि अब वो मुझ पर अंधा एतमाद करेगा, किसी तौर भी मुझसे दुश्मनी की तवक्को नहीं करेगा। मैंने कॉटेज में आने के बाद शेव नहीं की। 12 दिनों में दाढ़ी और मूछें बहुत बढ़ गई थीं। दूसरे दिन सुबह मैंने शेव नहीं की, दाढ़ी और मूछों को खूबसूरती से तराशा, सर के बाल भी शानों तक बढ़े हुए थे। ड्राइवर कार लेकर आ गया था। मैंने कार का और रिवॉल्वर का लाइसेंस निकाल कर चेक किया, फिर ड्राइवर से कहा कि एक कमरे में कपड़े का बड़ा सा थैला है जिसमें काठ कबाड़ भरा हुआ है, उसे ले आओ और कॉटेज लॉक कर दो। उसने मेरे हुक्म की तामील की। थैला लेकर कार में आ गया। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। उसने पूछा, सर इस थैले में ये काठ कबाड़ कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कहा, ये किसी की अमानत है, उसे लौटाने जा रहा हूँ। क्या तुम अस्पताल में मुलाजिमत करते हो? वो बोला, नहीं सर, मैं आपकी वालिदा का खास मुलाजिम हूँ, आप मुझे उनका बॉडी गार्ड भी कह सकते हैं, मैं तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैंने कहा, इसका मतलब है अम्मी जान खुद को महफूज नहीं समझती। वो बोला, जी हाँ, उनका पेशा ही ऐसा है, बहुत मशहूर लेडी सर्जन है। बाज़ औक़ात ऐसे खतरनाक मुजरिम उनके पास आते हैं जो उन्हें गन पॉइंट पर मजबूर करते हैं कि वो उनके किसी जख्मी साथी का ऑपरेशन करें और उसके जिस्म से गोली निकालें। मैंने कहा, मेरी अम्मी को मजबूर करने वाले मुजरिम मेरे सामने आ जाएं तो मैं इस तरह उन्हें गोलियों से छलनी कर दूंगा कि वो ऑपरेशन के काबिल नहीं रहेंगे। वो बोला, सर आप ये ना समझें कि आपकी वालिदा मोम की बनी हुई हैं, मैं 15 बरसों से उनके साथ हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कि वो दुश्मनों के लिए कितनी खतरनाक हैं। वो हालात से समझौता करके पहले एक कमजोर सी औरत बन जाती हैं, बड़े सुकून से दुश्मनों के अहकामात की तामील करती हैं, बाद में बड़ी सफाकी से एक एक दुश्मन को जहन्नम में पहुंचा देती हैं। मैं हैरानी से सुन रहा था। मेरी अम्मी का एक खतरनाक रूप मेरे सामने आ रहा था। मैंने पूछा, तुम उनके सिक्योरिटी गार्ड हो, उनके लिए तुम क्या करते हो? वो बोला, मैं उनके एक एक इशारे को समझता हूँ, उन पर मुसीबत आए तो वो खुफिया सिग्नल देती हैं, सर खुजाती हैं या रुमाल
से चेहरा पूछती हैं। मैं उन्हें मुसीबत में छोड़कर चला जाता हूँ। बाद में वो मुझे गाइड करती हैं कि किस तरह दुश्मनों से इंतकाम लेना है और उन्हें अब्दी नींद सुलाना है। मैंने पूछा, क्या अम्मी ने मेरे बारे में तुम्हें हिदायत दी हैं? वो बोला, जी हाँ, मुझे हुक्म दिया है कि शहर पहुंचकर कार से उतर जाऊं, आपको तन्हा छोड़ दूं। उसने शहर पहुंचकर वाकई मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने शादमान पहुंचकर सुनसान जगह कार रोक दी। साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर काठ कबाड़ में डालकर थैला लेकर बाहर आ गया। कार को लॉक करके शादमान के इलाके में जाने लगा। अम्मी ने मेरे पहनने के लिए चंद जोड़े भेजे थे। 1 हफ्ते पहले उतारा हुआ एक मैला जोड़ा मेरे जिस्म पर था ताकि मैं गरीब नजर आऊं। वो मेरे बारे में जैसा सोच रहा होगा वैसा ही दिखाई दूंगा। कोठी का बड़ा आहनी गेट बंद था। एक मुलाजिम ने आकर पूछा, तुम कौन हो, किससे मिलना चाहते हो? मैंने कहा, वैसे तो मेरा नाम बंदे अली है, मगर रब्बानी साहब से बोलो एक अमीन उनकी अमानत वापस करने आया है। वो बोला, आ जाओ। साहब ने कहा था कि कोई बड़ा सा थैला लेकर आए तो उसे आने दिया जाए। उसने गेट खोल दिया। मैं सुकड़ा सिमटा एहसास कमतरी में मुब्तला होने वाले गरीब की तरह चलता हुआ अहाते से गुजर कर कोठी के अंदर आया। कॉरिडोर में एक मुसल्ला गार्ड खड़ा हुआ था। उसने कहा, थैला दिखाओ, मुझे चेक करने दो। मैंने पूछा, रब्बानी साहब कहाँ हैं? वो बोला, वो ऊपर एक कमरे में हैं, तुम पहले थैला दिखाओ। मैंने थैले को उसके कदमों के पास फेंक दिया। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए झुका, मैंने कराटे का एक हाथ उसकी गर्दन पर रसीद किया। उसने रसीद वसूल की और फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। मैंने उछलकर एक पैर मोड़ते हुए उसकी गर्दन पर घुटने की जरब लगाई। उसके मुंह से एक कराह निकली, फिर वो बिल्कुल साकित हो चुका था। मेरे पास ये देखने के लिए वक्त नहीं था कि वो बेहोश है या मर चुका है। मैंने अपनी तसल्ली के लिए उसके सर को दोनों हाथों के शिकंजे में लिया और फिर एक जोरदार झटका देकर सर को घुमाया। शिकंजे में हड्डी की कड़क सुनाई दी। उसकी गर्दन टूट चुकी थी। वो उन 4 गुंडों में से एक था जिन्होंने गालियां दी थी। मैं थैला उठाकर कॉरिडोर से गुजरता हुआ एक जीने के पास आया, फिर दबे कदमों ऊपर चढ़ता हुआ एक बैल्कनी में पहुंचा। एक कमरे की खिड़की और दरवाजा दिखाई दिया। मैंने खिड़की के करीब आकर पर्दे को जरा सा हटाकर देखा। इनाम रब्बानी एक सोफे पर बैठा अंगूरों का गुच्छा उठाए एक एक दाना खा रहा था। उसके पीछे 2 गार्ड्स क्लैशनकोफ लिए खड़े हुए थे। वही गुंडे थे जिन्होंने क्लैशनकोफ के दस्तों से मुझ पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। फिर एक ने मुझे गोली मारी थी। उनमें से एक ने कहा, बॉस, वो गेट से अंदर आ गया है मगर अभी तक ऊपर नहीं आया। रब्बानी ने कहा, नीचे उसका थैला चेक किया जा रहा होगा। वो कोई गरीब सा आदमी है, खतरनाक नहीं है, फिर भी एहतियात लाजमी है। खिड़की की चौखट पर लोहे की जाली थी। मैंने साइलेंसर लगे रिवॉल्वर की नाल को जाली के अंदर किया। उसी वक्त एक गार्ड ने मेरी तरफ चौंक कर देखा। मैंने ट्रिगर दबा दिया। खट की हल्की सी आवाज के साथ उस गार्ड की पेशानी में सुराख हो गया। लहू का एक बारीक सा फव्वारा निकल पड़ा। दूसरे गार्ड ने चौंक कर अपने साथी को देखा। फिर इससे पहले कि वो खिड़की की तरफ देखता, मेरी दूसरी गोली उसके सीने के पार हो गई। दोनों गार्ड्स रब्बानी के दाएं और बाएं औंधे मुंह सोफे पर गिरे। वो उछल कर खड़ा हो गया। पहले उसने हैरानी और खौफ से खिड़की की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुल गया। उसने मेरे हाथ में साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर देखकर सहम कर पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, मेरी दाढ़ी और मूंछों को नजरअंदाज करके देखो और मेरी आवाज पहचानो। मैं वही मुर्दा हूँ जिसे तुम जंगल में फेंक आए थे। उसने आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देखा, फिर खौफ से लरसती हुई आवाज में पूछा, तुम जिंदा हो? मैंने उसे एक हाथ से खींचकर एक झटके से दूसरी तरफ घुमाकर उसकी गर्दन दबोच ली। फिर उससे पूछा, मैंने तुम्हारे इन 3 गार्ड्स को खत्म कर दिया है। वो गालियां देने वाला चौथा गार्ड कहाँ है? मैं कनखियों से दाएं बाएं और सामने देखता जा रहा था। सामने एक आईने में चौथा गार्ड नजर आया। मैंने उसे देखने में देर की। अब बाजी उसके हाथ में थी। वो मुझे क्लैशनकोफ से छलनी कर चुका होता, लेकिन इससे पहले उसके हलक से चीख निकल गई। क्लैशनकोफ हाथों से छूट गई और वो औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा। उसके सर के पिछले हिस्से से लहू बह रहा था। उसे मारने वाला मेरा दुश्मन नहीं हो सकता था। फिर भी मैंने पूछा, कौन है? बाहर कौन है? मुझे अम्मी की आवाज सुनाई दी। सिपाही परचम लेकर चलता है। तुम्हारे साथ माँ का आंचल है। अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। एक ही दुश्मन तुम्हारे शिकंजे में रह गया है। मैं जा रही हूँ। फिर खामोशी छा गई। वो मेरे इतने करीब थीं और मैं उन्हें देख नहीं सकता था। उनसे जो वादा किया था उस पर मुझे कायम रहना था। मैंने रब्बानी को गन पॉइंट पर रख कर उसकी तलाशी ली। लिबास के अंदर से एक रिवॉल्वर बरामद हुआ। मैंने उस रिवॉल्वर के चैम्बर को निकाल दिया। फिर उससे कहा, गालियां देने वाले 4 गए, 2 रह गए हैं, तुम और इंस्पेक्टर कलीम बुखारी। चलो अब गालियां दो। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे जिंदा रहने दो। मैंने कहा, तुमने मेरी जिस माँ को गालियां दी थी उसकी आवाज अभी तुमने सुनी है और तुमने ये भी देखा है कि उसने एक गाली देने वाले को जिंदा नहीं छोड़ा। फिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं?
وہ بولا مجھے ایک بار زندہ رہنے کا موقع دو, میں تمہارے بہت کام آؤں گا. میں ایک سیاستدان کا رازدار سیکیورٹی افسر ہوں. میں نے اسی سیاستدان کی سیکیورٹی کے لیے تم سے وہ واکنگ سٹک بنوائی تھی اور 1 درجن گن بنوانے کے لیے اس سے 5 لاکھ روپے لیے تھے. میں وہ 5 لاکھ روپے بھی تمہیں دے سکتا ہوں. اس نے سیاستدان کا نام بتایا. میں نے پوچھا بس یہی راز ہے؟ وہ بولا اور بھی کئی راز ہیں. ایک مشہور طوائف کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں. 6 ماہ پہلے یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ طوائف اسرائیلی تنظیم موساد کی جاسوسہ ہے. اس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری ہوا تھا لیکن وہ فرار ہو گئی. پولیس اسے گرفتار نہ کر سکی. شاید وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے. اگر اس طوائف کے ساتھ اس سیاستدان سلیم کامران کی تصویر منظر عام پر آ گئی تو اسے بھی موساد کا ایجنٹ سمجھا جائے گا. اس کی سیاست خاک میں مل جائے گی. میں نے پوچھا وہ تصویریں کہاں ہیں؟ وہ بولا وہ دوسرے کمرے میں میری الماری کے اندر ہیں. میں اسے دھکے دیتا ہوا دوسرے کمرے میں لے آیا. اس نے الماری کھولتے ہوئے پوچھا تم میری جان بخش دو گے نا؟ ابھی جتنا کام آ رہا ہوں آئندہ اس سے بھی زیادہ کام آؤں گا. اس نے الماری کھولی. الماری کے اندر ایک سیف تھا. اسے بھی کھولا. سیف کے اندر کئی بڑے لفافے تھے. اس نے بتایا کہ لفافے میں تصویریں اور ان کے نیگیٹو ہیں. دوسرے لفافے میں 3 بڑے سرکاری عہدیداروں کی قابل اعتراض تصویریں تھیں. میں نے تمام لفافوں کو اور بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیوں کو اٹھا لیا. پھر اس سے کہا چلو اپنے ٹیلی فون کے پاس چل کر بیٹھو. وہ میرے حکم کے مطابق ٹیلی فون کے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا انسپیکٹر کلیم بخاری کو فون کرو. اسے بتاؤ کہ میں زندہ ہوں اور مجھے موت کے منہ میں پہنچانے والوں کو کس طرح کتوں کی موت مار رہا ہوں. اسے کہنا کہ میں نے تمہیں راوی روڈ کے ایک خالی مکان میں ٹریپ کیا ہے اور میں اس مکان سے نکل کر سیدھا اس کے پاس پہنچنے والا ہوں. وہ نمبر ڈائل کرنے لگا. میں نے فون کا لاؤڈ سپیکر آن کر دیا. رابطہ ہوتے ہی انسپیکٹر کلیم بخاری کی آواز سنائی دی. ہیلو, میں انسپیکٹر بخاری بول رہا ہوں. وہ بولا میں ربانی ہوں. بخاری صاحب بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. وہ فرمان علی جسے ہم مردہ سمجھ کر جنگل میں پھینک آئے تھے وہ زندہ ہو گیا ہے. انسپیکٹر بولا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اسے تو کلیشنکوف کے دستوں سے اتنا مارا گیا ہے کہ جنگل کا شیر بھی اتنی مار کھاتا تو مر جاتا. پھر اسے گولی بھی ماری تھی. ربانی بولا یہاں اس کہاوت پر ایمان لے آئیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. وہ زندہ ہے. اس نے ان 4 گارڈز کو ہلاک کر دیا ہے جنہوں نے اسے گالیاں دی تھیں. گالیاں میں نے بھی دی تھیں اور تم نے بھی. میری موت ٹل جائے گی کیونکہ میں فرمان علی کو فائدہ پہنچانے والا سودا کر چکا ہوں, مگر تم نہیں بچو گے. وہ تمہاری طرف آنے والا ہے. انسپیکٹر نے حقارت سے کہا میں بزدل ہوتا تو پولیس کے محکمے میں نہ آتا. اسے آنے دو, میں اسے حوالات میں بند کر کے تشدد کروں گا. وہ بولا بخاری صاحب اس نے بھرے مجمع میں آپ کو زخمی کیا تھا اور آپ کی گردن دبوچی تھی. آپ کے 6 سپاہی بھی آپ کو اس کے شکنجے سے نہیں چھڑا سکے تھے. اب تو وہ زخمی شیر ہے, آپ کو پھاڑ کر کھا جائے گا. انسپیکٹر بولا دیکھو ربانی, ایک مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. تم یہ باتیں چھوڑو اور اس واکنگ سٹک گن کے سلسلے میں تم نے سلیم کامران سے جو بڑی رقم لی ہے اس میں سے میرا حصہ دے دو. اسپیکر آن تھا اس لیے میں نے کہا میں ایک عام سا پرامن شہری تھا. تم نے ربانی سے رقم لینے کے لیے مجھے کسی جرم کے بغیر گرفتار کیا, پھر مجھ پر اتنے ستم توڑے کہ مجھے زندہ سے مردہ بنا دیا. اب یہ مردہ زندہ ہو کر پوچھ رہا ہے کیا ربانی سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے تم زندہ رہ سکو گے؟ کلیم بخاری کو چپ سی لگ گئی. چند لمحوں تک وہ شاید حیران اور پریشان رہا. پھر بولا میں آواز پہچان رہا ہوں. تم فرمان علی ہو؟ ربانی بھی یہی کہہ رہا ہے مگر پھر بھی یقین نہیں آ رہا. تم زندہ کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا میں نے تمہیں سمجھایا تھا, وارننگ دی تھی کہ مجھے ماں کی گالی مت دینا. اگر دو گے تو میں مرتے مرتے بھی تمہیں لے مروں گا. اب تمہارے مرنے کی باری ہے. 4 تو ختم ہو چکے ہیں. وہ بولا میری بات سنو فرمان, محبت اور جنگ میں بہت کچھ ہوتا ہے. جس طرح ربانی اور تم نے سمجھوتا کیا ہے اسی طرح مجھ سے کرو. میں جب تک اس تھانے میں رہوں گا تمہیں اس علاقے کا دادا بنا کر رکھوں گا. تم جیسا بھی غیر قانونی دھندا کرو گے میں کبھی تمہارے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کروں گا. میں نے کہا اگر میں تمہارے جیسے تھانے دار کو قتل کر دوں تو علاقے میں میری اور زیادہ دھاک بیٹھے گی. آئندہ آنے والے پولیس افسران بھی فرمان دادا کو سلام کریں گے. میں نے ریوالور سے سائلنسر نکال کر کہا انسپیکٹر, ربانی نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے سیاستدان سلیم کامران کے کچھ اہم راز ثبوت کے طور پر دیے ہیں اور 3 اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے خلاف بھی تصویری ثبوت مجھے دیے ہیں. میں نے اس کے سیف سے 5 لاکھ روپے سے زیادہ رقم لے لی ہے لیکن اس کے بعد بھی ربانی زندہ نہیں رہے گا. ربانی خوف سے چیخ کر بولا فرمان بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں آئندہ بھی تمہیں فائدے. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے ریوالور سے اس کے منہ پر ضرب لگائی. وہ تکلیف سے چیخ پڑا. میں نے کہا کتے, تو ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں لا کر رکھ دے لیکن میری ماں کو گالیاں دینے کے بعد ماں کی عظمت کہاں سے لائے گا؟ تجھے بھی مرنا ہے اور انسپیکٹر کو بھی مرنا ہے. لے انسپیکٹر
आवाज सुन। ये कहते ही मैंने रब्बानी को गोली मार दी। ठाई की जोरदार आवाज फोन के जरिए इंस्पेक्टर तक पहुंच गई। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही, फिर इंस्पेक्टर की आवाज आई, हेलो रब्बानी, मेरी बात का जवाब दो। ये फायरिंग की आवाज कैसी थी? तुम जिंदा हो ना? हेलो। मैंने कहा, मुर्दे को हेलो हेलो बोलोगे तो वो नहीं हिलेगा। तुमने गोली चलने की आवाज सुनी? वो गोली रब्बानी को खा गई है। मौत अजल से इंसानों को खा रही है, उसका पेट ही नहीं भरता। ये मौत अगली दावत पर तुम्हारे पास आ रही है। मैंने बटन दबाकर स्पीकर ऑफ कर दिया। जो कुछ रब्बानी के सेफ से हासिल किया था उसे लेकर जाने लगा। उसी वक्त मेरे मोबाइल से बजर की आवाज उभरी। मैंने मोबाइल को ऑन करके पूछा, हेलो अम्मी, आप हैं? उनकी आवाज आई, हाँ बेटे, काम हो गया। मैंने कहा, जी हाँ, सिर्फ इंस्पेक्टर रह गया है। वो बोली, मैंने जो रिवॉल्वर तुम्हें दिया है उस पर अपनी उंगलियों के निशानात मिटाकर रिवॉल्वर को वहीं लाश के पास फेंक दो। मैंने पिछले दिन की तारीख में इस रिवॉल्वर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी है। देर न करो, फौरन वहां से निकलो और अपने कॉटेज वापस आ जाओ। मैंने रिवॉल्वर को रुमाल से अच्छी तरह साफ किया, फिर उसे वहीं फेंक कर कोठी से बाहर आ गया। मुझे कोई देखने और रोकने वाला नहीं था। मैं तेजी से चलता हुआ अपनी कार में आकर बैठ गया। शहर से दूर अपने कॉटेज की तरफ जाने लगा। उसी वक्त फिर अम्मी ने फोन पर कहा, मेरा वो बॉडीगार्ड चंगेजी जो तुम्हारे साथ कॉटेज से शहर आया था, वो माल के लाइट एंड शेड फोटोग्राफर की दुकान पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहां जाओ और पासपोर्ट के लिए अपनी तस्वीरें उतरवाओ। तुम्हें कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जाना है। मैंने पूछा, क्यों जाना है? मैं पहले उन दुश्मनों से निपटना चाहता हूँ जो आपको नाहक बदनाम करते हैं। वो बोली, बेटे, तुम्हारी माँ कमजोर नहीं है। मैं उस दुश्मन को उल्टा लटका चुकी होती। वो 2 बार मेरे निशाने पर आया मगर बचकर निकल गया, रूपोश हो गया। अब पता चला है कि वो लंदन में है। अब तो तुम मुल्क से बाहर जाओगे। मैंने कहा, आप बहुत अच्छी हैं अम्मी, मैं जरूर जाऊंगा। मैंने अपनी कार माल रोड की तरफ मोड़ते हुए कहा, आपके पास उस दुश्मन की तस्वीर जरूर होगी। वो बोली, तस्वीरें भी हैं और उसके बारे में मैंने एक डायरी में भी बहुत कुछ लिखा है। ये सब कुछ उस सेफ में है जो कॉटेज के दूसरे कमरे में है। मैंने पूछा, मैंने वो सेफ देखा है लेकिन वो मखसूस नंबरों से खुलता है। वो बोली, तुम 9034 से खोल सकोगे। मैंने कहा, अम्मी जान, मैंने कभी पाकिस्तान से बाहर कदम नहीं रखा। क्या आप समझती हैं कि मैं लंदन में रूपोश रहने वाले दुश्मन को तलाश कर सकूंगा? वो बोली, चंगेजी गाइड बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने कहा, थैंक यू अम्मी जान। उन्होंने फोन बंद कर दिया। मैं फोटोग्राफर की दुकान पर पहुंचा तो मुराद चंगेजी इंतजार कर रहा था। फोटोग्राफर ने मेरी कई तस्वीरें उतारी। मुराद चंगेजी ने उससे कहा, आज शाम तक तस्वीरें तैयार कर दो, मैं आकर ले जाऊंगा। मैंने कार में बैठते हुए कहा, अम्मी जान कह रही थी तुम मेरे साथ लंदन जा रहे हो। वो बोला, जी हाँ, मैं कोशिश करूंगा परसों की फ्लाइट में 2 सीटें मिल जाएं। मैंने हैरानी से पूछा, परसों? अभी तो मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना। वो बोला, आपकी अम्मी कल एक दिन में आपका पासपोर्ट और दूसरे अहम कागजात तैयार करवा लेंगी, आप सफर की तैयारी करें। ये कहकर वो चला गया। मैं कार स्टार्ट करके ड्राइव करते हुए सोचने लगा, मेरी अम्मी है क्या चीज। ये बात समझ में आती थी कि वो गैर मामूली शोहरत हासिल करने वाली लेडी सर्जन थी। बड़े बड़े सरकारी ओहदेदार उनके ज़ेरे इलाज रह चुके थे और उनकी कदर करते थे। वो यकीनन एक दिन में मेरा पासपोर्ट तैयार करवा सकती थी। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये था कि वो खतरात से खेलने वाली खातून थी। मैं उनका निशाना देख चुका था। रब्बानी की कोठी में उन्होंने मुझ पर हमला करने वाले को गोली मारी थी। निशाना ऐसा पक्का था कि दूसरी गोली चलाने की जरूरत पेश नहीं आई थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक ऐसी माँ का बेटा हूँ जो शैतानों के लिए मौत है, उनसे जिंदगी छीन लेती है और इंसानों के लिए मसीहा है। पेचीदा ऑपरेशन के जरिए उन्हें मौत से छीन कर नई जिंदगी देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।